Let's start Kingdom Fungi. Fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make beer and bread. Other fungi cause disease in plants and animals, like wheat rust causing Yersinia is an important example. Some are the sources of antibiotic, example penicillin. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil, and on animal and plants. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungus infection. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Their body consists of long, slender, thread-like structures called hyphae. The network of hyphae is commonly called mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called coinecytic hyphae. Others have septate and cross walls in their hyphae. Cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates, hence are called saprophytic. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. Those that depends on living organisms like plant and animals are called parasites. They can also live as symbionts in association with algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza. Reproduction can take place by vegetative means, fragmentation, fission, budding. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores. Sexual reproduction is by oospores, ascospores, basidospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. Sexual, rep- se- sexual, sexual cycle involves following three steps. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes called plasmogamy, fusion of two nuclei called karyogamy, meiosis and zygote resulting in haploid spores. Fungus reproduces sexually. The two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, fusion of two haploids
cells immediately result into diploid cells to end. However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic cell n plus n, that is 2 nuclei per cell, occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and cell becomes diploid. The fungi forms fruiting body in which reproduction division occurs. Later, the parental nuclei fuse, cell become diploid. Fungi form fruiting bodies in which reproduction division occurs. Later, the parental nuclei fuse, cell become diploid. Fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. Morphology of mycelium, mode of spore formation in fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. कौन कौन आते हैं फंजाई में? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, डिट्यूरोमाइसिटीज, ये आते हैं, ये 4 आते हैं। चलो पहले शुरू की मार्किंग कर लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जिससे सवाल आ सकते हैं। ये इससे आ सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये वाली लाइन आ सकती है, ये पूरा पैरा। आओ चलो नो आओ चलो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। किंगडम, फंजाई, सबसे पहले तो इसके सारे एग्जाम्पल्स, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं किंगडम फंजाई में। पहला मेंबर किंगडम फंजाई का है फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है
बेसिडोमाइसिटीज, जो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब आते हैं नोट्स पे। एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि मशरूम और टोडस्टूल्स। फिर जैसे कि फिर दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट, जो कि ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है। तीसरा ये इम्पोर्टेंट है, जो व्हीट रस्ट जो कॉज करता है। कौन कॉज करता है? फुसीनिया, एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। फंजाई को हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सूटेबल कंडीशन कौन से होते हैं इनके लिए? suitable conditions for them पहला है वार्म और दूसरा है ह्यूमिडिटी। इनकी बॉडी कैसे होती है? लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं। हाइफी के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। कुछ हाइफी कुछ हाइफी के पास एक कंटिन्यूस ट्यूब होता है, कुछ हाइफी के पास कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होता है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। ट्यूब में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं?
इस पूरे को बल्कि कोइनोसाइटिक हाइफी। कुछ के पास उनकी हाइफी में सेल वॉल सेल नहीं। कुछ हाइफी में सेप्टा होता है, सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल्स। जो इनकी सेल वॉल होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। फंजाई हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे पहला हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे जो जैसे सेप्रोफाइट, ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। फ्रॉम डेड substrates। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम डेड substrates। कुछ पैरासाइटिक होते हैं, ये डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। कुछ सिम्बायोटिक सिम और कुछ सिम्बायंस होते हैं। सिम्बायंस ये एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि एल्गी के साथ जब रहता है एल्गी और फंजाई, तो ये लोग
लाइकेन बनाते हैं, जैसे कि लाइकेन में जैसे कि लाइकेन में जैसे कि लाइकेन में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई, जैसे कि माइकोराइजा। अब आती है रिप्रोडक्शन की बारी। वेजिटेटिवली कैसे होती है? थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। असेक्सुअली फोर्स से, जिनको हम लोग कॉनिडिया कहते हैं, या फिर फोरेंजियो फोर्स कहते हैं, या फिर जूस फोर्स कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे। सेक्सुअली है इस oospore से, एस्कोस्पोर से, बेसिडोस्पोर से। फोर्स जो होता है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट अब आता है सेक्सुअल साइकिल। अब आता है
sexual cycle involving involve sexual cycle involves in following three steps. पहला क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमी भी कहते हैं। दूसरा, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। फिर तीसरा, मियोसिस इन ज़ाइगोट, मियोसिस मियोसिस इन ज़ाइगोट, जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स में रिजल्ट आता है। ज़ाइगोट का मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब कह रहे हैं कि जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तब दो हाइफी सेम कंपैटिबल टाइप के आके फ्यूज हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल तुरंत का तुरंत इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। इसको आप 2N कहते हैं। कुछ फंगस में, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेफिडोमाइसिटीज,
डाइकैरियोसिस होता है इनमें। डाइकैरियोसिस क्या होता है? अब जब n+n दो न्यूक्लियाई पर सेल बनते हैं तब इसको हम लोग डाइकैरियन कहते हैं, और इसके फेस को हम लोग डाइकैरियोसिस कहते हैं। जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज हो जाता है और जो सेल होती है वो डिप्लॉयड बनती है। जो फ्लोटिंग बॉडीज होती है इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करती है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, mode of spore formation and fruiting bodies form basis for the division of for the अब क्या कह रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। मोड ऑफ स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी, ये तीनों फॉर्म करती हैं बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द kingdom into various classes। अब आता अब आता हम लोग का फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड में पाए जाते हैं, मॉइस्ट और डैम्पी प्लेसेस में पाए जाते हैं, या फिर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट में पाए जाते हैं। माइसीलियम सेप्टेट और कोइनोसाइटिक होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जूस्पोर से होता है, मोटाइल होते हैं इनके जूस्पोर, या फिर ए प्लानोस्पोर से होता है, नॉन मोटाइल होते हैं जूस्पोर। जो स्पोर्स होता है वो एंडोजीनियसली स्पोरोगेनियम स्पोरोज जो स्पोर्स होता है वो एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है। जो जाइगोस्पोर होते हैं वो दो गैमेट के फ्यूजन से फॉर्म होते हैं। ये गैमेट सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, मतलब आइसोगैमस होते हैं, या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनआइसोगैमर और ओगैमस। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस कौन जो ब्रेड में फंगस लगाता है, एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। फाइको माइसीटीज। एक्वेटिक फाउंड कहाँ कहाँ, एक्वेटिक हैबिटेट्स में, डिकेइंग वुड में, डिकेइंग वुड्स में, मॉइस्ट फिर डैम्पी प्लेसेस पे। इनका जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट और मोइनोसाइटिक होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जब ये जूस्पोर्स मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by zoospores, अगर ये मोटाइल है तो, और या फिर अपेलेनो, या फिर एप्लेनोस्पोर से होता है, जिसमें दोनों
अप्लेनोस्पोर मतलब दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है। ज़ूस्पोर दोनों गैमेट्स मोटाइल। एप्लेनोस्पोर्स दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल। जो स्पोर्स होता है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं दो गैमेट्स के फ्यूजन से। ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं ये बात ये जो गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं उनको हम लोग आइसोगैमस भी कहते हैं। या फिर जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं वो हमारे एन आइसोगैमस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर कौन से होते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं उनको हम लोग एन आइसोगैमस भी कहते हैं। या फिर ओगैमस कहते हैं। ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस कौन से फंगस होते हैं जो जनरली हम लोग ब्रेड में देखते हैं? वो वाले फंगस राइजोपस होते हैं। जैसे कि एल्ब्यूगोम, ये पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड प्लांट में। अब चलो मार्किंग कर लेते हैं।
चलो एस्कोमाइसिटीज देखते हैं। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ये रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफाइलस होते हैं। डंग कॉप्रोफाइलस कौन मतलब जो डंग में ग्रो करते हैं। इसमें जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कॉनिडिया के, वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पाइरल माइसीलियम पे, जिसको हम लोग कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। जो कॉनिडिया है वो जर्मिनेशन पे माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं सैक में, जैसे कि एस्की। उसको हम लोग सिंगुलरली एस्कस कहते हैं। दे आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। जो एस्काई होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग एस्कोकार्प्स कहते हैं, जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा होता है वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। Many members like morel and truffles are edible and are considered delicious. तो जैसे कि मोरल्स और ट्रफल्स ये एडिबल होते हैं और इनको हम लोग कंसिडर करते हैं डिलेकेशियस। कुछ मेंबर जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और इनको डिलेकेशियस माना जाता है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग एस्को माइसीटीज के बारे में। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इनको हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ये रियरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट में सैकरोमाइसिस। ये सेप्रोफिटिक होते हैं।
डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कोरोफाइलस होते हैं, डंग में ग्रो करते हैं, जो माइसीलियम होता है इनका, वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, सेक्सुअल स्पोर्स इनके इनके जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं इनको हम लोग कॉनिडिया कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनसली स्पेशल माइसीलियम पे, जिसको हम लोग कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। जो कॉनिडिया है वो जर्मिनेशन पे माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग एस्कोपोर्स कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसको हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है सैक में। जैसे कि एस्की में होता है, जैसे जैसे कि एस्की में होता है। ठीक है, ये जो एस्की होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड होता है, जिसको हम लोग एस्को कार कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि एस्पर, जैसे कि एस्पर जिलस,
लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, जो न्यूरोस्पोरा होता है ये एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के काम आता है, और जेनेटिक वर्क में काम आता है, जैसे कि और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मोरल, ट्रफल्स, इनको हम लोग एडिबल मानते हैं और डेलिकेशियस मानते हैं। ठीक है, अब मार्किंग कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पूरा है। किंगडम फंजाई से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। ओके। मतलब जितना मैंने मार्क कराया वो सब याद करना है। चलो आते हैं बेसिक डोमेस्टिटीज पे। बेसिक डोमेस्टिटीज को हम लोग कॉमनली कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं बेसिक डोमेस्टिटीज। जो बेसिक डोमेस्टिटीज होते हैं उनके कॉमन फॉर्म से मशरूम बेसिक डोमेस्टिटीज में आता है। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सब बेसिक डोमेस्टिटीज में आते हैं। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे करते हैं, ट्री स्टम्प पे करते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज में करते हैं, पैरासाइट जैसे कि रस्ट और स्मट्स। जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। जो असेक्सुअल स्पोर होता है वो जनरली इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है जब दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल फ्यूजन करते हैं डिफरेंट स्ट्रेन के या डिफरेंट जीनोटाइप्स के, तो ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बेफिडियम को प्रोड्यूस करते हैं। कैरियोगैमी और मियोसिस टेक प्लेस इन द बेफिडियम। जो कैरियोगैमी है मियोसिस है वो बेफिडियम में होता है, और फिर ये 4 बेफिडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। जो बेफिडियोस्पोर्स होता है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है बेफिडियम में। जो बेफिडिया होता है वो
एज अ फ्लोटिंग बॉडी अरेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिडियो कार्प्स। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे एगारिकस मशरूम, यूस्टेलिगो टेली यूस्टेलो यूस्टी यूस्टिलैगो मट, पुशीनिया रस्ट फंगस। अब आता हमारा बेसिडो माई सिटीज। इसको कॉमनली हम लोग मशरूम भी कहते हैं। ब्रैकेट फन, ब्रैकेट फंजाई, या पफ बॉल्स। ठीक है, सॉयल लॉग इसमें इनका पैरासाइटिक फॉर्म कौन सा होता है? रस्ट एंड मड्स। ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है commonly by fragmentation only। ठीक है, इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोगेमी से। जो प्लाज्मोगेमी होता है वो फ्यूजन कराता है वो फ्यूजन कराता है दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स का, जिनके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं या डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं।
ठीक है। ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर देता है डाइकैरियोटिक, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट देता है बेसिडियम को, बेसिडियम प्रोड्यूस करता है। कैरियोगैमी और meiosis take place in basidium। ये 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड हुए हैं जो बेसिडिया है ये एज अ अरेंज्ड होता है फ्लोटिंग बॉडीज, जिसको हम लोग बेसिडियो कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल लेंगे अब हम लोग। एगारिकस मशरूम होता है। यूस्टिलेगो मठ होता है। पुशीनिया रस्ट फंगस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मार्किंग की बात हुई तो टॉपिक इम्पोर्टेंट। अब आता है ड्यूटीरोमाइसिटीज। इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि केवल असेक्सुअल और या फिर वेजिटेटिव फेज ही इनका होता है। जो सेक्सुअल फॉर्म होता है these fungi were when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into class they rightly belong to. It is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the asexual stage another and placed under another class. Later, with the linkages were established, the fungi was incorrectly identified and moved out of Deuteromycetes. One perfect sexual stage of member of Deuteromycetes were discovered. They were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes. Deuteromycetes produced only by asexual spores, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनिडिया। माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। लार्ज नंबर जो मेजॉरिटी की है वो डिकम्पोजर होती है।
decomposer of litter and help in mineral cycling. कुछ एग्जाम्पल्स है ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। चलो नोट्स बना लेते हैं। ड्यू टीरो माइसीटीज। इसको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है। ओनली asexual and vegetative form of reproduction is known। ठीक है। ये केवल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस बेसिकली करते हैं और फॉर्म करते हैं कॉर्निडिया को। ठीक। जो इनका माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर्स इसके सेप्रोफाइट्स होते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो डिकम्पोजर्स की होती है। ये मिनरल साइक्लिंग के काम आते हैं। एग्जाम्पल्स देखो। ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है। और अभी फिलहाल किंगडम प्लांटियो किंगडम एनिमिलिया छोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों का अलग से ही चैप्टर दिया गया है आगे, तो इनको ब्रीफ में तभी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। पूरा किंगडम प्लांट पूरा किंगडम एनिमल अलग से दिया है, तो उसको वहां पढ़ेंगे। अब आता है मेन पॉइंट। मिनिमम फर्स्ट, who have suffered the ill effect of the common cold or flu know what effects virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place in classification since they are not true living, are not considered true living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the virus are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell.
Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? Virus means genome. Virus means venom or poisonous fluid. Dmitry Ivanovsky 1892 में recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. They were found to be similar. They they were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. W. M. Stanley, 1935, showed that viruses could be crystallized, and crystals consist largely of protein. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA or double stranded DNA. Bacterial viruses or bacteriophage. Bacteriophage means viruses that infect bacteria are usually double stranded DNA viruses. The protein coat called capsid made of small subunit called capsomeres protect the nucleic acid. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in humans. AIDS in humans is also caused by virus. In plants, the symptoms may be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing, and stunt growth. Viroids. 1971, T. O. Diner discovered new infectious agent that was smallest than virus. In 1971, T. O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus caused potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA. It lacked protein coat and that is found in virus, hence named viroid. RNA of the viroid was low molecular weight. Prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins. The agent was similar in size to virus. These agents were called prions. Most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant
Chia-Jacob disease in humans. Lichen Lichens are symbiotic associations, that is mutually useful associated. Lichens are symbiotic associations, that is mutually useful associations between algae and fungi. Algal component is called phycobiont. Fungal component is called mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food for fungi. Fungi provide shelter and absorb minerals, nutrients, and water for its partner. So close, so close is that association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. Let's make notes. Viruses, virions, prions, and lichens. तो पहले बात करते हैं वायरस की। तो इनको हम लोग ट्रू लिविंग नहीं मानते। ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, पाया जाता है आउटसाइड ऑफ द सेल। लिविंग सेल, outside of the living cell.
वायरस का मतलब होता है वीनोम, मतलब पॉइजन, पॉइजन वाला फ्लूइड। इसको खोजा था ठीक है। फिर दिमित्री इवानोस इवानोस्काई रिकॉग्नाइज किए थे कुछ माइक्रोब्स हैं एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोब्स एज कैजुअल एज कैजुअल organisms of mosaic disease of tobacco उन्होंने खोजा और ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया पाए गए, क्योंकि ये पास कर गए थे बैक्टीरियल बैक्टी क्योंकि क्योंकि इन्होंने बहुत आराम से बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर्स को पास कर लिया था। ठीक है। फिर एम डब्ल्यू बेजरिनैक रिनेक 1898 में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ infected plants of tobacco could cause infection, नाम दे दिया वायरस। और फ्लूइड का नाम दे दिया and call the fluid as Cantagium vivum fluidum, infectious infectious living fluid।
फिर WM स्टैनले ने शो किया कि जो वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो लार्जली प्रोटीन के होंगे। जो कि इनर्ट होंगे, प्रोटीन के होंगे। ठीक, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस को हमने एक ऑब्लिगेट पैरासाइट बुलाया। ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो RNA या तो DNA। RNA एंड DNA कभी नहीं, या तो RNA या तो DNA। ठीक है। जो वायरस होता है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज होता है ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। डबल स्ट्रैंड DNA वायरस जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना होता है जिसको हम लोग कैप्सोमेयर कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है। जो कैप्सोमेयर होते हैं ये हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, हेलिकल शेप में या पॉलीहेड्रल शेप में अरेंज्ड रहते हैं। ठीक।
अब आता है वायरॉइड्स। इसको टी.ओ. डायना ने डिस्कवर किया था कि एक वायरस से भी छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉलर देन वायरस, जो क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इसके पास फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। फ्री आरएनए तो होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता है। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया वायरॉइड। जो इसका आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। फिर आएगा हम लोग का प्रायॉन्स। इसके पास एब नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, वायरस के सिमिलर होता है। इन एजेंट का नाम दे दिया है प्रायॉन्स। ये मैड काउ डिजीज कॉज कर मैड काउ डिजीज कैटल्स में होता है। सिमिलर वेरिएंट का ये ह्यूमंस में फैलाते हैं, जिसका नाम है पी आर जेकॉब डिजीज। दोनों का वेरिएंट सेम है। ठीक, फिर आता है लाइकेंस। ये सेम बायोसिस दिखाते हैं एल्गी और फंजाई में। ठीक, जो जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं फाइकोबायोन्ट। जो फंजाई होता है उसका नाम देते हैं माइकोबायोन्ट। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक।
ठीक है। और ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक, हम लोग का यहाँ चैप्टर अब खत्म होता है। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। अब हम लोग का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। होप आपको समझ में आया हो। यू ऑल लाइक आवर चैनल।